Occupy the seats. So mention lecture details in the notebook. Date 22 to 2022. 22 to 2022. Serial lecture 1 of the day for subject physics by Shendye madam. Lecture 1 for physics, Shendye madam. Your notebooks should be updated. These notebooks carry marks for yearly work. Be sure you will complete your notebooks in time. They carry the marks. So in the lecture series, we are discussing about EM waves. These EM waves are produced of different wide range of frequencies. Nowadays, with advanced studies, EM waves covering wide range of frequencies, we can produce experimentally, that is artificially. Even though they have different frequencies, all these EM waves have some common properties. We discussed properties or characteristics of EM waves last time, isn't it? In that we considered EM waves which are visible to us, also EM waves which can be experimentally produced, which are not visible to us. So we can able to produce EM waves whose wavelength is greater than wavelength of EM waves in visible light, as well as EM waves whose wavelength is less than wavelength of EM waves lying in visible light. विजिबल लाइट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन विजिबल लाइट की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट वेवलेंथ क्या है, रेड कलर. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉयलेट कलर. तो उसके आगे भी we can prepare artificially, experimentally EM waves whose frequency is greater than the frequency of violet ray. They are not visible for us. Similarly, nowadays we are able to produce experimentally, artificially EM waves whose frequency is less than that of the frequency of red color. तो ये सब इनविजिबल रीजन हो गया, और विजिबल में कौन सा आएगा, रेड टू वॉयलेट. लेकिन in advanced studies we are able to produce EM waves in visible as well as in invisible region of our human eye. अभी क्या होता है, सबको कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टीज है, बट इफ यू कंसिडर EM waves of frequencies in different regions, ये जो रेंज है विजिबल एंड इनविजिबल पूरी रेंज है. इफ यू अरेंज EM waves in both these ranges according to their frequency orderly, either increasing order of frequency or decreasing order of frequency. क्या होता है, sun is a natural source of EM waves. It emits EM waves of different frequencies, out of which only few we have still detected and we are studying. जो lowest frequency है that is radio wave, जो अब तक डिटेक्ट हो चुकी है ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
इज गैमा रेज, यानी कि सन जो ईएम वेव्स रेडिएट कर रहा है उसमें कुछ ईएम वेव्स अभी भी है जो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी भी हम लोगों ने डिटेक्ट नहीं किया है, whose frequencies might be greater than gamma rays, whose frequencies might be less than that of radio waves. So this region doesn't have the fixed boundaries. उसको लोअर लिमिट भी नहीं है, उसको हायर लिमिट भी नहीं है। जो अब तक हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं, एक्सपेरिमेंटली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर पाए हैं, उसका हम लोग ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। Either in increasing order of frequency you arrange EM waves that we have detected and still we have studied, that will give you a wide region, and such is called EM spectrum. So today we will discuss about EM spectrum. Get the question? Define EM spectrum. Define EM spectrum. Define EM spectrum. मैंने क्या बोला आपको, डेफिनेशन क्या बोली? EM waves radiated by sun, out of all only few still we are able to detect, and we are trying that detected EM waves by sun to produce artificially, experimentally. We are studying on it. So this EM spectrum doesn't have any particular boundaries. लोअर लिमिट भी है नहीं उसको, अपर लिमिट भी नहीं है। As time passes, with the help of advanced studies, there is a scope to detect EM waves radiated by sun whose frequency is greater than gamma rays and frequency less than that of radio waves. बहुत सारे वेव्स अभी भी सराउंडिंग में हैं EM टाइप, लेकिन हम लोग उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कौन सी वेव हमको लास्ट मिलती है फ्रीक्वेंसी वाली? गैमा रेज। और लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं? रेडियो वेव्स। सो नो पर्टिकुलर बाउंड्री, सो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन according to the frequencies of EM waves which have detected and which we are studying is called EM spectrum. Orderly distribution, orderly distribution, orderly distribution of EM waves, orderly distribution of EM waves according to the frequencies or wavelength, according to frequencies or wavelengths, according to frequencies or wavelengths in form of distinct groups, in form of distinct groups having widely different properties, having widely different properties, having widely different properties। सब लोगों को नोटबुक में लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस चालू रखनी है। इज कॉल्ड EM spectrum, is called EM spectrum. Next question, state characteristics of EM spectrum. State characteristics of EM spectrum. State characteristics of EM spectrum. मैंने क्या बोला? It doesn't have any particular boundary. Number one, it doesn't have particular boundaries. It doesn't have
particular boundaries to the lower side as well as to the upper side. To the lower side and upper side. Lower side and upper side. Number 2, between two regions or groups in EM spectrum. Between, next property में बोल रही है, two groups or regions in EM spectrum, no sharp boundary of separation. No sharp boundary of separation. Number 3, we consider EM spectrum. We consider EM spectrum of the waves which are detected and are studied, only only only. सन तो बहुत सारे ईएम वेव्स रेडिएट कर रहा है. जो सब ईएम वेव्स रेडिएट हो रही है उसका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम वेव्स which we are able to detect and on which we are working. समझा? हाँ, बहुत सारे वेव्स अभी भी बाकी है जो हम लोगों ने अभी तक डिटेक्ट नहीं किए हैं. सो यू आर हैविंग और यू हैव अ वाइड स्कोप फॉर रिसर्च, स्पेशली ऑन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आर्टिकल है ना, उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारा स्कोप है. इन एडवांस स्टडीज यू कैन प्रोसीड फर्दर विथ प्योर फिजिक्स इन सेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. बहुत सारा काम, रिसर्च वर्क इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी भी चालू है. इज दैट क्लियर? सो वी विल फोकस ओनली ऑन EM waves which we detected and we are studying, making them artificially and using them for our live needs. बराबर है ना? तो आप लोगों को कौन सी EM waves मालूम है? बताओ मुझे. विजिबल लाइट मैंने बोला, विजिबल रेंज, और दूसरी क्या बोली मैंने? इनविजिबल. विजिबल के लेफ्ट साइड में इनविजिबल आएगा, विजिबल के राइट साइड में भी इनविजिबल आएगा. राइट साइड अबव वायलेट रे, दैट विल हैव स्टिल मोर फ्रीक्वेंसीज. हाई फ्रीक्वेंसी हो गई. और जो रेड कलर लोएस्ट है ना, जो हम लोग, हमारा आई डिटेक्ट कर सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे भी कुछ है ना. तो विजिबल लाइट के रेड कलर के नीचे जो वेव्स है, जो इनविजिबल है, लेकिन हम लोगों ने वो आर्टिफिशियल बनाए हैं एंड वी आर यूजिंग दैट फॉर आवर डेली ईड्स. सांगरे कौन कौन सी है? रेड कलर के नीचे बोल रही है हमें, रेडियो वेव्स है. दूसरी कौन सी आप लोगों को मालूम है? माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं ना हम लोग, तो माइक्रोवेव भी EM टाइप की ही वेव है. वी आर प्रोड्यूसिंग इट एंड वी आर यूजिंग ऑल्सो इट. इसका यूज भी कर रहे हैं. माइक्रोवेव दैट हैव लोअर फ्रीक्वेंसी इवन दैट ऑफ रेड कलर. तीसरा रीजन बोलो जो रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाला है, हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है. नाइट शूटिंग करते हैं ना, तो उसमें जो कैमरा यूज करते हैं आप लोग, वो कैमरा किसके ऊपर चलता है? नहीं तो टीवी का रिमोट कंट्रोल. तो रिमोट कंट्रोल हाथ में एक सेट रहता है और उसका एक यूनिट टीवी स्क्रीन पे बिल्टअप रहता है. उन दोनों में ट्यूनिंग होता है ना. तो रिमोट कंट्रोल कौन से वेव पे चलता है? That are also of EM wave type. Remote controls generally work
ऑन इंफ्रारेड EM वेव्स। जो इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी है ना, वो हम लोग रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, सेंसिंग के लिए यूज करते हैं। समझा? तो कौन से रीजन मैंने बोले? रेड से कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड, उससे कम माइक्रोवेव, उससे भी कम रेडियो वेव्स। तो अब तक हम लोग रेडियो वेव्स बना सकते हैं। उसकी भी लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन हम लोग अभी वो डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आर्टिफिशियली वी हैव नॉट गॉन फॉर द प्रिपरेशन of the frequency which has value lower than the frequency of radio waves। अब तक हम लोग कौन से बोले मैंने? लोअर फ्रीक्वेंसी इंफ्रा, फॉलोड बाय माइक्रो, फॉलोड बाय रेडियो। अपर वाले बोलो गैमा रेज के बाद क्या आता है? विजिबल लाइट का एक्सट्रीम अप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर। आप लोगों को मालूम है वॉयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली EM वेव हम लोग यूज कर रहे हैं। इमीडिएट हायर क्या आती है? अल्ट्रा वॉयलेट, सुना है ना नाम? वॉयलेट के बाद क्या आएगा? अल्ट्रा वॉयलेट। उसके बाद कौन सी अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सरे। उसके बाद और क्या हम लोग बना सकते हैं? गैमा रेज भी बना सकते हैं ना। तो ये जो है ना वो अपर रेंज है, और पहले बोली वो क्या है? लोअर रेंज है। समझा? क्वेश्चन, राइट डिफरेंट रीजन्स इन EM spectrum, write different regions in EM spectrum according to increasing order of frequency, according to increasing order of frequency, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो सारी EM वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मालूम है, लेकिन लिखते समय डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी करनी है। दैट विल गिव यू EM स्पेक्ट्रम। तो क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है ना क्वेश्चन में, तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव है वो रीजन पहले लिखना चाहिए। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गर है, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक क्या होती है? लोअर होती है। लॉन्गर वेवलेंथ गिव्स यू लोअर फ्रीक्वेंसी, बराबर ना? V is equal to n lambda. V is constant, so if lambda increases, n should get decreased. सेल्फ एडजस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि V वैल्यू कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। So longer the wavelength gives you lower frequency। तो longest wavelength किसकी है? अभी known EM waves में radio waves have longest wavelength, means they have lowest frequency। So increasing frequency order लिखनी है तो चालू कब से करनी है? रेडियो वेव्स। लिख डालो रेडियो वेव्स। नेक्स्ट इज microwaves। Third is infrared waves। नेक्स्ट कौन सा आएगा सेक्शन? विजिबल लाइट। अभी विजिबल लाइट के अगले जो आएंगे they will have higher frequencies than the visible light। violet याद रखना, लास्ट क्या है उसका? violet color has maximum frequency। तो उसके बाद कौन सा आएगा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आएगा एक्स रेज, एंड लास्ट इज गामा। GAMMA गामा रेज। अगर आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो गामा रेज के आगे जो फ्रीक्वेंसी है, जो सराउंडिंग में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग डिटेक्ट नहीं पा रहे हैं अभी उसको, तो आपको स्कोप है
You try to detect EM wave in our surrounding, available in our surrounding, which has still higher frequency than gamma rays or lower frequency than रेडियो वेव्स. प्योर साइंस में भी ना बहुत सारा स्कोप है. ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ही बनना है, सबको डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं. प्योर साइंस में भी बहुत सारी ब्रांचेस है. वाइड स्कोप ऑफ स्टडीज इवन इन प्योर साइंस, अप्लाइड बेस्ड, अदरवाइज रिसर्च बेस्ड. लेकिन प्योर साइंस वो तो है, वो तो बेसिक है, तो इसमें भी बहुत सारा स्कोप है. डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि मेरे को बाद में इंजीनियर ही बनना है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं. हम लोग प्योर साइंस लेके, मैंने भी एमएससी किया तो प्योर साइंस में ही किया है. द स्पेशलाइजेशन आई हैव सिलेक्टेड इज इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आगे स्पेशलाइजेशन किया है, लेकिन आप लोग प्योर साइंस ले सकते हो. कौन सी भी ब्रांच. इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइड बेस्ड ज़्यादा है. अगर आप लोग नीचे गए, मैकेनिक्स थियोरटिकल फिजिक्स में गए, तो दैट इज थियोरटिकली ओरिएंटेशन, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी है वो अप्लाइड ओरिएंटेशन है. लेकिन प्योर साइंस के लिए भी बहुत सारा स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं. बहुत सारी स्टडीज अभी भी बाकी है, आपका भी टाइम आएगा. हाँ, तो आप लोग प्योर साइंस में जाए तो भी अच्छा है. सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट आई टोल्ड, ऐसी है ना, ये वेव्स की रेंज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो क्या करते हैं, इफ यू लुक इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीजन्स, कुछ रीजन्स बनाएंगे. These two regions are not distinctly separated, they are overlapping on each other. ये इधर का रीजन इधर तक जाता है, ये रीजन पीछे भी आता है, ओवरलैपिंग भी है. लेकिन in that particular frequency range, that EM waves show few peculiar properties. Common properties तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रीजन्स बनाए. Not sharp boundary between the two regions, distinct boundaries नहीं है, overlapping है ही. फिर भी for that particular region, these waves, this group, next group, UV group show few peculiar properties, and hence we have to proceed further to study application of different regions lying in EM spectrum. तो रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी रेंज, उसमें क्या डिफरेंस है. अकॉर्डिंगली यू कैन यूज देम फॉर आवर यूज. जो काम रेडियो वेव कर सकती है वो अल्ट्रावायलेट वेव नहीं कर पाएगी. अल्ट्रावायलेट हायर फ्रीक्वेंसी है, वो कुछ peculiar property different from radio wave it will show, and that property we will study and we will use it for our daily use. आप लोगों को मालूम है ऐसे का different frequency regions है ना, तो one by one we will study their applications in our daily life. Get the next question. Explain applications in different regions. Applications in different regions of EM spectrum. Applications different regions of EM spectrum. आंसर लिखना चालू करो. All regions are broadly categorized. All regions are broadly categorized. Means they are arranged in different groups, but broadly manner, not sharp. Broadly categorized. Each region shows some peculiar properties, specific characteristics. Each region shows
some characteristic properties, some characteristics properties, some characteristic properties. High frequency range, 1 minute, over the visible, and low frequency range in comparison with visible. अभी हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना, दे आर वेरी इंजूरियस फॉर ह्यूमन बीइंग्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है ना बहुत डेंजरस है. उसका एक्सपोजर टू ह्यूमन बॉडी इज नॉट सजेस्टेड. गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज वो अपने बॉडी के ऊपर गिरे तो कुछ इंजुरी, ट्रिमेंडस इंजुरी यू हैव टू फेस. So it is not recommended to expose yourself or any living being for EM waves of higher frequencies. आप लोगों को कभी डॉक्टर बोलता है क्या, अभी आप लोग गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जाओ एक्सरे निकाल के आओ, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं. उसको अगर कुछ डाउट रहेगा तो बोलेगा कि जा बाबा एक्सरे निकाल के ला. Otherwise, doctor never recommends immediately to get X-ray of that organ if you suffer with the accident. तो रेकमेंड नहीं क्यों करते हैं. अल्ट्रावायलेट, आप लोगों को मालूम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का बैड इफेक्ट है. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से भी निकलते रहेंगे ना, सन से तो पूरे रेडिएशंस निकल रहे हैं. Ultraviolet, gamma, X-ray, all these higher frequency radiation sun is emitting. Still we are alive. सन तो रेडिएट कर रहा है, हमारे ऊपर तो गिर रहेंगे ना, तो हम लोग जिंदा कैसे हैं फिर. क्या है रे, Earth's atmosphere plays very important role. बराबर ना, for propagation of all these EM waves. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, वो सब हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी वाला EM वेव्स रेडिएटेड बाय सन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, मींस एब्जॉर्ब करता है. ओजोन लेयर मालूम है, सुना है ना. तो ये सब प्रॉपर्टीज है ना, इसलिए वी आर स्टिल अलाइव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. नहीं तो हम कब के मर चुके होते अगर ब्लॉक नहीं होता. तो रिकमेंडेशन क्या है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, विजिबल लाइट तो हम लोग एक्सपोज है ही. व्हाट इज द मेन यूज ऑफ विजिबल लाइट, टू सी द ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस. ये तो उसका पहला काम है ना. विजिबल लाइट नहीं होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट देख सकते थे क्या. तो उसके लोअर रेंज वाली फ्रीक्वेंसी इतनी डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन अपर वाली फ्रीक्वेंसी हार्मफुल है. तो ज्यादा से ज्यादा अपर को जाना ही नहीं, लोअर वैल्यूज में ही काम करते हैं. सो द रीजन क्लोज टू विजिबल with lower frequency than visible immediately is what, infrared rays. अभी इंफ्रारेड रेस तैयार करो, नहीं तो सन वाल में जो मिल रही है उसका इस्तेमाल करो. बोथ द वेज, यू प्रिपेयर एंड यू यूज इट, और डायरेक्टली detect it from EM waves radiated by sun and then use it both ways. तो इंफ्रारेड रेज बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ यूज करते हैं रे बोलो. इंफ्रारेड मैंने बोला नाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट जिधर चाहिए ना. दिस इंफ्रारेड रेज कैन पास थ्रू फॉग और मिस्ट. मिस्ट में, फॉग में पेनेट्रेशन उसका होता है. तो रात को अगर आप लोग शूट करते हैं तो भी it has that much energy to penetrate through fog or mist. तो इसीलिए नाइट फोटोग्राफी में उसका इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा मैंने क्या बोला, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसर्स रहते हैं ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है. और बोलो मेरे को, आपको कौन से यूजेस मालूम है. सोलर पैनल मालूम है ना. हाँ, तो सोलर पैनल में क्या रहता है, ग्लास सरफेस रहता है. दैट ग्लास
1 minute.